हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ फिजिक्स। हम देखो अज आप पढ़ना है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। आप लास्ट टाइम सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स पढ़िया सीगा। सो इनके नाल दा ही आर्टिकल है वर्क जो आप करांगे। अच्छा देखो आप एक डायग्राम बनाई है जिंदे विच आप दिखाया कि एन पार्टिकल्स ने सिस्टम के, ठीक है। फर्स्ट सैकेंड इस तरह n-1 nth पार्टिकल है। आ सारे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वैक्टर है, ठीक है। सो आप इनकी कैलकुलेशन करनी है कि RCM की वैल्यू की होएगी, ठीक है। सो कंसिडर किया सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है। M1 M2 M3 अप टू MNB का मासिस ते R1 R2 R3 अप टू RNB देयर पोजीशन वैक्टर्स, ठीक है। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ कि ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ v1 v2 v3 ਅਪ ਟੂ vn ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੀਏ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v1 ਆ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v2, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ nth ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ vn ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਈਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਬਾਕੀ n-1 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ 15 ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 14 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਮੀਨਸ n ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ n-1 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ F1 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ F2 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ nth ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ n-1 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ Fn ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ F1 ਸਮਾਲ f1 ਸਮਾਲ f2 ਅਪ ਟੂ ਸਮਾਲ fn, ਇਹ n ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਸੋ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਡਿਊ ਟੂ n-1 ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ n-1 ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ n-1 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹ F1 ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ F2 ਹੈ, nth ਤੇ Fn ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ F1, ਇਹਦੇ ਤੇ F1 ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ F2 ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ Fn-1, ਇਹਦੇ ਤੇ Fn ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। dm1v1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ M1v1 ਫਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਹਦਾ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਫੋਰਸਿਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ d/dt ਆਫ M2v2 ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ F2 प्लस स्मॉल f2, ठीक है। इस तरह आप चलते जावांगे तो d/dt ऑफ mn/vn ये कितने बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा Fn प्लस स्मॉल fn, ठीक है। ये n इक्वेशनस अपने को आ जाएंगियां 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ n ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ n ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ n ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ d/dt ਆਫ m1v1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੱਸ d/dt ਆਫ M2v2, ठीक है, प्लस d/dt ऑफ M3v3। इस तरह चलते चलते प्लस d/dt ऑफ MnVn, ठीक है। ये सारे आप ऐड कर लाँगे।
ये ऐड कर लाँगे तो अपने कोल उनकी एडिशन कितने बराबर आ जाएगी। देखो उनकी एडिशन आ जाएगी राइट हैंड साइड से सीगा F1 प्लस स्मॉल f1 प्लस f2 प्लस स्मॉल f2, ठीक है, प्लस f3 प्लस स्मॉल f3। इस तरह चलते चलते Fn प्लस स्मॉल fn, ठीक है। ये सारे की एडिशन हो जाएगी। सो ये देखो स्मॉल f1 f2 f3 f2 fn जोड़े है इंटरनल फोर्सेज ने। हम सम ऑफ इंटरनल फोर्सेज 0 होता है, ठीक है ना। बट हम देखो इत्थे देखो ये डी बाई डी टी है सारा, इत्थे डेरिवेटिव आप डी बाई डी टी कॉमन कर दीए तो अपने को बन जाएगा, ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn vn, ठीक है। तो इक्वल टू की हो जाएगा f1 प्लस f2 अप टू fn, ठीक है, प्लस स्मॉल f1 प्लस स्मॉल f2 अप टू स्मॉल fn, ठीक है। ये सारे आप ऐड करते हैं, ठीक है ना। बट सम ऑफ इंटरनल फोर्सेज स्मॉल जो कैपिटल एफ है, ठीक है, कैपिटल एफ इंटरनल फोर्सेज स्मॉल एफ एक्सटर्नल फोर्सेज ने। कैपिटल एफ इंटरनल फोर्सेज आप लिखा सीगा, स्मॉल एफ एक्सटर्नल फोर्सेज लिखा सीगा। बट आप लिख देंगे F1 प्लस F2 प्लस अप टू Fn, ये की है, ये 0 है। इंटरनल फोर्सेज सारिया जड़ियाँ एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंदियां ने, तो अपने कोल जो है वैल्यू की रह जाएगी। देखो आ जड़ा डेरीवेटिव है इसकी वैल्यू स्मॉल फोर्सेज रह जाएगी F1 F2 F3, ठीक है ना। सो देयरफॉर आप लिखांगे डी बाई डी टी ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn vn, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा F1 प्लस F2 अप टू Fn, ठीक है। इनके बराबर ही आ जाएगा सारा, आ चीज़ इनके बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो हुण आपां दी वैल्यू v1 ते v2 v3 अप टू vn की वैल्यू पुट कर देंगे। हुण देखो की है, की बनेगा कि डी बाई डी टी ऑफ आ m1 v1 है जोड़ा आप m1 डी बाई डी टी ऑफ r1 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह प्लस m2 डी बाई डी टी ऑफ r2 लिख देंगे, ठीक है, प्लस mn, ठीक है, एम ही चलता रहेगा mn डी बाई डी टी ऑफ और एन लिखांगे, ठीक है, आ वी एन। ये सारा जोड़ा है फरदर इक्वल टू आ जाएगा, आ सारा इनू आप लिख देंगे समेशन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n fi, ठीक है। समेशन का मतलब होता देखो जो इतने i1 करांगे अपने को फर्स्ट टर्म आ जाएगी। समेशन का मतलब सम ऐड करना, 1 करांगे आई नू फर्स्ट टर्म प्लस समेशन मतलब प्लस प्लस चली जाना, 2 करांगे सैकेंड टर्म, 3 करांगे थर्ड टर्म, इस तरह n करांगे लास्ट टर्म, ठीक है। सो ये इनकी वैल्यू बन गई। हुण देखो इत्थे डेरीवेटिव सारियां दे विच कॉमन आंदा पिया, इनू बाहर लिख देंगे तो अपने को आ जाएगा d2 बाय dt स्क्वेयर, इत्थे m1 r1 रह गया प्लस m2 r2, एवं चलता जाएगा तो mn rn, ठीक है। ये सारा कहते बराबर आ गया समेशन i इक्वल टू 1 टू n fi, ठीक है, सिग्मा fi इनू कह देंगे आप, ठीक है।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कितने नाल करांगे देखो m1 प्लस m2 अप टू mn, ठीक है। ये सारे नाल आपां मल्टीप्लाई ते डिवाइड कर देना है। हुण आपां आ इक्वेशन जिहड़ी है इहनूं लिखीए ते अपने कोल की बनदा देखो m1 प्लस m2 प्लस m3 आपां सीधा इस तरह लिख दिंदे आ mn लिख दिंदे आ, ठीक है। ये आ गया। हुण आपां इहदे विच क्योंकि मास कॉन्स्टेंट हुंदा है, इहनूं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव दे विच डिनोमिनेटर च लिख दिंदे आ। इत्थे आ जाएगा d2 बाय dt स्क्वायर ते इत्थे आ गया m1 r1, ठीक है। आ आपां लिख रहे हैं इनकी जगह ते मल्टीप्लाई ते डिवाइड कर रहे हैं आ सारे नाल, ठीक है। ये उवें ही आ जाएगा प्लस m2 r2 अप टू mn rn, ठीक है। तो इनके डिनोमिनेटर दे विच आ जाएगा आ सारा। सो मल्टीप्लाई भी हो गया तो डिवाइड भी हो गया, कोई फर्क नहीं पेगा, ठीक है। सो इसे चीज़ में मल्टीप्लाई करता, इसे नाल डिवाइड करता, इक्वेशन आ जी है सच रह जाएगी। ये सारा जोड़ा है ये इक्वल टू है सिग्मा एफ आई दे आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है, इनके बराबर है। सो हुण ये जी फोर्स है, ठीक है, जी फोर्स है इनू आप लिखांगे लैट सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई, ये जी है कैपिटल एफ के बराबर है, मान लो सारी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। तो ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। मान लो कि ये इनके बराबर है, तो आ इक्वेशन अपने को बन जाएगी देखो एफ इक्वल टू ठीक है, एफ इक्वल टू की आ जाएगा, इनू आप इस तरह लिख दें। ये सारा जो सम्मेशन है वो कैपिटल एफ के बराबर आप मान लिया। तो कैपिटल एफ के बराबर आ जाएगा आ सारी इक्वेशन जी आप लिखी है m1 प्लस m2 अप टू mn, ठीक है। तो d बाई dt ऑफ m1 r1 अप टू mn rn, ठीक है, सम्मेशन इनकी। चलो आप इतने सैकेंड टर्म भी लिख लें m2 r2 अप टू mn rn, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn, ठीक है। ये सारी वैल्यू जी है ये आ गई अपने को। सो ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ गई। हुण आपां एक्सटर्नल फोर्स जी है ये मन के चलते हैं कि जोड़ा सिस्टम है एन पार्टिकल्स का उनका एक सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास की होंदा है वो पॉइंट जिथे सपोज कर सकते हैं कि सारे का सारा मास कंसनट्रेट है, जिवें आपां इनू एक पॉइंट ते बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इनू एक पॉइंट ते आपां बैलेंस कर लीए, जिहड़ा इहदे इत्थे पॉइंट आएगा आपां इनू इत्थे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। जिवें बैलेंस हो गया। सो ये पॉइंट जिहड़ा आया इहदा सेंटर ऑफ मास है। सो कोई भी चीज़ सेंटर ऑफ मास ते बैलेंस हो जाती है। सो आपां ये मन के चल सकते हैं कि इनका सारे का सारा मास उस पॉइंट ते कंसनट्रेटेड है जिन्होंने आपां सेंटर ऑफ मास कह रहे जिथे बैलेंस हो गया, ठीक है। हुण देखो उस पॉइंट का जिहड़ा पोजीशन वैक्टर है उन्होंने RCM कह देंगे, जिहड़ा आपां डायग्राम च बनाया सीगा, ठीक है। सो उनदे नाल आपां फोर्स नूं लिखांगे। हुण देखो आपां मन के चलते हैं कि ये हैगी है एक्सेलरेशन जी प्रोड्यूस हो रही है सिस्टम के जी एक्सटर्नल फोर्स करके हो रही है, ठीक है। तो RCM है वो पॉइंट
जिथे आप सपोज कर सकते हैं कि सारे का सारा मास कंसनट्रेटेड है सिस्टम का, सुपोज टू भी कंसनट्रेटेड मतलब मन्निया जाता है कि कंसनट्रेटेड है, ठीक है। दैन देखो एफ जिहड़ा है वो की होएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये की बन जाएगा एफ इक्वल टू मास इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ RCM, ठीक है। सो RCM का डबल डेरिवेटिव बन जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन की होंगी है पोजीशन वैक्टर का डबल डेरिवेटिव, पोजीशन वैक्टर का डेरिवेटिव करते हैं वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हैं एक्सेलरेशन आ जाती है, तो एक्सेलरेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। हुण आप लास्ट इक्वेशन जो लिखी सी उहदे नाल इहनूं कंपेयर करिए तो अपने कोल ठीक है ना, आप कंपेयर करते हैं लास्ट इक्वेशन नाल, ठीक है ना। लास्ट इक्वेशन आप लिखी सी बट जी आप लास्ट इक्वेशन लिखी सी वो लिखते हैं एफ इज इक्वल टू मास m1 प्लस m2 अप टू mn, ठीक है ना, इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव कितना लिखा सीगा m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn, ठीक है। ये सारे का आप डबल डेरिवेटिव लिखा सीगा। हुण आ इक्वेशन तो आ इक्वेशन कंपेयर करिए आप तो अपने कोल देखो एफ इज इक्वल टू इत्थों आया पर आप लास्ट इक्वेशन आ लिखी सी, सो ए चीज सेम है, डबल डेरिवेटिव सेम है, तो RCM जो इनके बराबर हो गया, ठीक है ना। सो कंपेयरिंग we get RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 up to mn rn divided by m1 plus m2 plus up to mn, ठीक है। सो ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का सारे सिस्टम का, ठीक है। ठीक है, देखो सो विच इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। आ इक्वेशन अपने को आ गई, ठीक है। जे अपने को क्वेश्चन पूछते हैं तो इतने अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फिर फर्दर जो लीनियर मोमेंटम बारे क्वेश्चन आता है सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स के विच, ठीक है ना। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आप कैलकुलेट करना है। लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करने लिए आप करा देखो आ इक्वेशन जी है, ठीक है ना, इतने लिखा फ्रॉम अबव इक्वेशन फ्रॉम अबव इक्वेशन अपने को आ जाएगा, देखो आप उधर आ जाने तो अपने को आ जाएगा m1 m2 अप टू mn नाल RCM आ गया, ये बराबर आ गया अपने m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn, ठीक है। इस चीज़ के बराबर ही आ गया। सो ये इस चीज़ के बराबर आ गया। देखो जोड़ा है लेट m1 प्लस m2 अप टू mn जोड़ा है वो है कैपिटल M, ठीक है। तो अपने को बन जाएगा सो MRCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn इनके बराबर बन गया, ठीक है।
ये वैल्यू अपने को बनी। हुण देखो इनू आप डिफरेंशिएट कर दीए, डिफरेंशिएट करांगे तो अपने को एम कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव आर सी एम का हो जाएगा। ठीक है, सो इधर भी एम वन डी बाई डी टी ऑफ आर वन प्लस एम टू डी बाई डी टी ऑफ आर टू अप टू एम एन। ठीक है, अप टू आप लिख लाँगे एम एन तेरे डी बाई डी टी ऑफ आर एन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह चली आ जाएगा। हुण डेरिवेटिव इनू कहते हैं वेलोसिटी, तो डेरिवेटिव आर सी एम की हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अपन लिख देंगे एम वी सी एम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अप टू एम एन वी एन। ठीक है, ये वैल्यू इनकी आ गई। हुण देखो इनू फरदर आप डिफरेंशिएट करिए। ठीक है ना, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, फरदर डिफरेंशिएशन करते हैं आप। ठीक है, फरदर डिफरेंशिएशन करांगे आप तो अपने को क्या आ जाएगा, देखो एम डी बाई डी टी ऑफ वी सी एम। ठीक है, वी सी एम का डिफरेंशिएशन कर लिया तो राइट हैंड साइड से आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आ सारा मोमेंटम जोड़ा है। ठीक है ना, देखो एम वन वी वन एम टू वी टू अप टू एम एन वी वन, ये सिस्टम का मोमेंटम है सारा। ठीक है, इनू आप एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अप टू एम एन वी एन। ठीक है, इन इस तरह लिख लेना। हुण देखो आ डेरिवेटिव जिहड़ा ये एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है, तो इनू आप पी लिख देंगे सारा। ठीक है, ये मोमेंटम है सिस्टम का, इनू आप पी ना लिख दें। सो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम जिहड़ा वो मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। मास इंटू एक्सेलरेशन की इनके बराबर है, ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। ठीक है ना, सो एक्सटर्नल फोर्स आ जिहड़ा आप लिखा सीगा आ देखो। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। हुण जेकर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी, जीरो होएगी, तो आ चीज़ जीरो बन जाएगी। सो डेरिवेटिव ऑफ समथिंग जीरो, इसका मतलब आ चीज़ कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ठीक है, सो इसका मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये आप नैक्सट इतने लिखते हैं सारा। हम देखो ये बन गया एम ए। ठीक है, इक्वल टू बी बाई डी टी ऑफ पी। ठीक है, सो देयर पी इज इक्वल टू एम वन डी वन प्लस एम टू डी टू अप टू एम एन वी एन। एलियर मोमेंटम है इज द मीडियन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है। हुण देखो बट एम ए इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, therefore F is equal to d by dt of P if F is equal to 0। ठीक है, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। ठीक है ना, देन d by dt of P is equal to 0 और P equal to constant। ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड पार्टिकल्स की गल की सी, किंदे बराबर आया, वो इत्थों तो अपने को इनके बराबर ही आया।
ठीक है, m1 v1 अप टू mn vn, पर उनका जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आ जाता है। तो जे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है तो लीनियर मोमेंटम जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। मीनस ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, कि जे सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, तो इनका मतलब हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है ना, दैट इज if no external force is acting on the system, then linear momentum of the system of n particles, ठीक है, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है, रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, कंजर्व्ड मतलब वो चेंज नहीं होएगा, वो टोटल वैल्यू दी पी के बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो रिमेन्स कंजर्व्ड।